Assalamu alaikum dear students. In today's lecture, we will be moving one step ahead and we will move to the next topic, which is flip-flops. So far we have covered latches, and in latches too we have covered two types of latches, SR latch and D latch. So now let's get started with the new topic, which is flip-flop. So before that, let me tell you the difference between latches and flip-flop. Now let's have a quick read of this slide and then I will explain it to you, the points that are given here. The state of a latch or flip-flop, the state of a latch or flip-flop is switched by a change in the control input. Now, if you recall, अभी तो चूंकि आपने flip-flop के बारे में इतना पढ़ा नहीं है, if you recall the last lecture in which I told you about latches, so basically when I talk about state का क्या मतलब होता है? The output of the latch. Remember, previously in one of the interactive sessions I've told you that जब आप लोग SR latch की बात करते हैं या D latch की बात करते हैं तो remember we used to make a table of SR latch. On the left side of the table we had the column S and R, and on the right side of the table we had the column Q of T plus 1. So basically in combinational circuit, whenever we have to define some behavior of a circuit, we draw the truth table. In sequential circuits we do not draw the truth table. In fact, that table is called the state table. Okay, the state table tells you the state of the output. What is the output state at the moment? That is why it is called state. So basically, if the output changes from 0 to 1, it means that we say that the circuit is changing its state. So that is why you come across this term state quite often. So now the state of a latch or flip-flop is switched by a change in control input. If you recall the latch lesson, we used a control input जिसको हमने enable कहा था. So basically it all depends on enable. If enable pin is high, only then we'd be able to store something in the latch. Otherwise we'd not, the previous value will be stored, will be retained. Okay, so whenever, if the enable pin is high or the control pin is high, and if we change the input of the latch, for example, if I say S is 1 and R is 0, then the output of the latch will be 1, and provided the control input is high. But if the control input is high and I provide R0 and S1, then the output of the latch will be 0. So it means that the latch is changing state between 1 to 0, from 1 to 0. So this momentary change is called a trigger. So हम लोग ये कहते हैं कि लैच ट्रिगर हो गया. ठीक है, अब अगर आप रिकॉल करें तो हमने देखा था कि जब इनेबल पिन हाई होगी, इनेबल पिन हाई होने का मतलब ये है कि या वो 1 होगी. 1 होने का मतलब ये है कि लैचेस आर लेवल ट्रिगर्ड, यानी कि जब वो 1 के लेवल पे आ जाएगी तो जितनी देर तक ये हाई होगी तो एनी चेंज इन द लैच, इन द SR इनपुट और द D इनपुट विल चेंज द आउटपुट, प्रोवाइडेड कि आपका जो लैच है वो 1 हो. तो अगर लेट्स सपोज वो लॉजिक हाई पे 1 होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये, सो लैचेस आर लेवल ट्रिगर्ड. लेवल ट्रिगर्ड का मतलब ये है कि जब वो उसमें एक लेवल आ जाता है ना, हाई लेवल, इनेबल पिन जब 1 हो जाती है तो 1 होने का मतलब है कि हाई लेवल, तो इसका मतलब ये है कि वो लैच जो है वो ट्रिगर हो गया, यानी उसमें आउटपुट चेंज हो सकती है. लेकिन जो डिफरेंस है लैचेस और फ्लिप फ्लॉप का वो क्या है कि फ्लिप फ्लॉप्स आर एज ट्रिगर्ड. एज ट्रिगर्ड का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज. जब हम लोग कंट्रोल में एक पूरा पल्स देते हैं क्लॉक की, ठीक है, तो पहले क्लॉक की पल्स 0 से 1 हो रही है, फिर 1 से 0 हो रही है. तो जिस टाइम पे ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम 0 टू 1, जिस टाइम पे ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम 0 टू 1 या 1 टू 0, उस टाइम को हम कहते हैं एज. ये एज है, दिस इज वन ऑफ द एज. इसलिए अगर आगे ये नीचे चला जाएगा तो दैट इज अनदर एज. एज का मतलब ये है कि या लो से हाई जाना जिस मोमेंट पे, दैट इज कॉल्ड एज. हाई से लो जाना जिस मोमेंट पे, दैट इज कॉल्ड एज. सो बेसिकली latches are level triggered whereas flip flops are edge triggered. edge triggered का मतलब ये है कि कंट्रोल इनपुट में जब मैं पूरा लेवल 1 दूंगी तो ओनली देन इफ इट इज अ लैच देन इट विल चेंज इट्स आउटपुट. लेकिन अगर वो फ्लिप फ्लॉप है तो वो जो आउटपुट में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ इस इंस्टेंट में पॉसिबल है, इस इंस्टेंट में पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो लैचेस आर बिल्ड फ्रॉम गेट्स. आपने देखा लैच किस तरह से बनता है, आपने देख लिया लैच किस तरह से बनता है, नॉर गेट या नैंड गेट से. ठीक है, जबकि फ्लिप फ्लॉप्स आर बिल्ड फ्रॉम लैचेस. अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप्स बनते कैसे. सो
फ्लिप फ्लॉप बेसिकली लैचेस से बनते हैं। तो लैच का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने लैच जो पढ़ा था एसआर लैच, उसमें कंट्रोल इनपुट थी। तो कंट्रोल इनपुट जब कंट्रोल इनपुट वन होगी तो ओनली देन आई बी एबल टू चेंज द स्टेट ऑफ द आउटपुट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो लेवल पे वर्क करते हैं, इस लेवल पे वर्क करते हैं। तो जब तक ये वन है, तो जब तक फ्लिप फ्लॉप लैच की इनपुट चेंज होती रहेगी, आउटपुट पे चेंज आता रहेगा। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है लैचेज में, ठीक है। लैचेज में ड्रॉबैक क्या है कि आपका जो लेवल होता है ये बहुत देर तक रहता है, ठीक है। तो इस लेवल के दौरान आपकी इनपुट जितनी बार भी चेंज होगी, आउटपुट में उतनी बार चेंज आता रहेगा। जबकि हम लोग लैचेस ऑफ फ्लिप फ्लॉप को किस लिए यूज करते हैं, हमारा पर्पस क्या लैचेस ऑफ फ्लिप फ्लॉप को यूज करने का? स्टोरेज पर्पस। हम चाहते हैं कि हम अपना डेटा एक दफा उसको फीड इन कर दें और वो डेटा ज्यादा देर तक रिटेन रहे। तो ज्यादा देर तक रिटेन रहने का मतलब ये है कि इवन इफ अगर उसकी इनपुट चेंज भी हो रही हो तो आउटपुट चेंज ना हो। अब होता क्या है कि जब हम उसको लेवल पे लैच को टर्न ऑन करवाते हैं तो लेवल का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो इस ड्यूरेशन में जितनी जितनी इनपुट चेंज हो, जितनी जितनी बार इनपुट चेंज होती रहेगी, आउटपुट उस लैच की चेंज होता रहेगा। यानी वो लैच इट विल कीप ऑन ट्रिगरिंग, उसमें नया डेटा आता रहेगा। जबकि दिस इज समथिंग आई डू नॉट वांट। आई वांट डेटा टू बी ट्रिगर्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड आई वांट डेटा टू बी रिटेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी उसमें नया डेटा मैं एक थोड़ी देर के लिए लाना चाहती हूँ, लेकिन वो डेटा स्टोर रहे ज्यादा टाइम के लिए। ये मेरा पर्पस होता है लैचेस ऑफ फ्लिप फ्लॉप का। सो बिकॉज ऑफ दिस वी अवॉइड यूजिंग लैचेस फॉर स्टोरेज पर्पसेस एंड वी मूव वन स्टेप अहेड फॉर फ्लिप फ्लॉप्स। हम लोग फ्लिप फ्लॉप से करते हैं तो अब देखें, अब फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी क्या है कि आपका जो डेटा है ना, अगर आपने कोई भी डेटा उस फ्लिप फ्लॉप में फीड इन करवाना है तो सिर्फ आपके पास इतना टाइम है। तो आप ये देख लें, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, ऑलमोस्ट जीरो टाइम है, ऑलमोस्ट जीरो टाइम, यानी कि इंस्टेंटली आपका डेटा फीड होगा और ज्यादा देर तक रिटेन रहेगा। जबकि लैच में क्या होता है, इस टाइम पे जब जब आपका डेटा चेंज हो रहा होगा तो आपकी आउटपुट चेंज होती रहेगी, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप। दिस इज द अदर डिफरेंस, दैट लैचेस आर लेवल ट्रिगर्ड while flip flops are edge triggered. Latches are built from gates whereas flip flops are built from latches, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को ये हेल्प आउट कर सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। Now coming to edge triggered flip flops. Up this is, if you recall the previous lesson, I told you that basically flip flops, the difference between flip flops and latches is that flip flops are level triggered, latches are level triggered and flip flops are edge triggered. यानी कि flip flops are synchronous sequential circuits whereas latches are asynchronous sequential circuit, ठीक है। Why they are called synchronous? Because the output changes state only a certain point on triggering input. यानी clock के एक certain instant पे output change हो सकता है, इसके अलावा output change नहीं हो सकता है। And what that certain instant is? That certain instant is during the edge of the clock. या पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज, वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। पॉजिटिव एज का मतलब होता है राइजिंग एज। पॉजिटिव एज का मतलब क्या होता है कि जब हमारा जो कंट्रोल इनपुट है वो 0 से 1 पे जाता है तो वो वाली जो एज है हम उसको कहते हैं पॉजिटिव एज। लो से हाई की तरफ जाना मीन्स पॉजिटिव एज, हाई से लो की तरफ जाना नेगेटिव एज। सो चेंज फ्लिप फ्लॉप, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप चेंजेस स्टेट एट ईदर द पॉजिटिव एज और एट द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स, राइट। ओके, सो बेसिकली अब आप देखें, ये है, ये एक हम लोग कंट्रोल इनपुट पे ये देते हैं। हम लोग ने लैचेस की जो कंट्रोल इनपुट पढ़ा था, हम लोग इस तरह के पल्स देते हैं। अब अगर ये लैच होगा तो लैच इस पे वर्क करेगा जब ये लॉजिक लेवल 1 होगा, या हो सकता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हो सकता है बाज लैचेस एक्टिव लो लॉजिक पे काम करते हैं तो वो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन लैच। अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करें कि अगर लैच हाई लेवल पे ऑन होता है तो इसका मतलब है कि ये इस टाइम पे वो लैच के अंदर डेटा ट्रिगर करने की कैपेसिटी है, ठीक है। अच्छा, जबकि अगर हम फ्लिप फ्लॉप्स की बात करें तो फ्लिप फ्लॉप्स में बेसिकली डेटा, जो नया डेटा आता है उस फ्लिप फ्लॉप में वो सिर्फ इस टाइम पे आता है। तो अब देख लें इस टाइम और इस टाइम में कौन सा शॉर्टर इंटरवल है। डेफिनेटली ये वाला, ये एक काफी लॉन्गर इंटरवल है। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एज रिस्पॉन्स एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एज रिस्पॉन्स। Latches respond to a change in the level of the clock pulse, whereas flip flops respond to signal transition. ये signal transition, ठीक है। So
अब यही स्टोरी मैंने जो भी आप लोगों को बताई है वो यही बताई है कि द न्यू स्टेट ऑफ अ लैच अपीयर्स एट द आउटपुट व्हाइल द पल्स इज स्टिल एक्टिव, यानी कि पल्स अभी हाई है, पल्स अभी हाई है और न्यू स्टेट आ सकती है। तो अगर मैं आपकी इनपुट को 3 दफ़ा चेंज करूं तो आउटपुट 3 दफ़ा चेंज हो जाएगी इस पूरे इंटरवल में, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए, इफ द इनपुट अप्लाइड टू द लैचेस चेंज व्हाइल द क्लॉक पल्स इज स्टिल एट लॉजिक 1 लेवल, द लैचेस विल रिस्पॉन्ड टू न्यू वैल्यूज और न्यू आउटपुट में अगर, यानी जब हम लोग उस लेवल 1 के दरमियान इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज होती रहेगी। तो एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि जो इसकी आउटपुट है वो ट्रिगर करती रहेगी बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल वैल्यू मैंने स्टोर कौन सी करवानी है, ठीक है। सो इसलिए फिर हम लोग आते हैं फ्लिप फ्लॉप्स की तरफ। फ्लिप फ्लॉप्स बनते कैसे हैं, ठीक है। सो द सिंपल वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोसीजर्स टू बिल्ड अ फ्लिप फ्लॉप इज यूजिंग मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज बिल्ड विद 2 गेटेड लैचेस, ठीक है। दो गेटेड लैचेस कौन से वाले थे, रिमेंबर वो वाले जो हमने नैंड गेट विद इनेबल यूज किया था, जिसमें हमने 4 नैंड गेट यूज किया था। पहला वाला जो राइट साइड पे नैंड गेट्स का कपल था वो क्रॉस कपल्ड नैंड गेट, जो एक बेसिक लैच स्ट्रक्चर था। उसके शुरू में हमने 2 और एडिशनल नैंड गेट्स लगा लिए थे। इसके लिए आपको पुराना लेक्चर रिकॉल करना पड़ेगा जिसमें हमने एक इनेबल लगाई थी, ठीक है। The master stage is active during the half cycle of the clock and the stage slave is active during the other half. The output value of the flip flop, अब मैं आपको सिर्फ अभी ये बताती हूँ। देखिए ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, ये किस तरह से बना है, डी लैच। डी लैच क्या था, इसके अंदर कौन सी कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर वो वाली कंस्ट्रक्शन है जो हमने 4 नैंड गेट्स यूज किए थे, ठीक है। और उसके शुरू में एक इनेबल था जिसको हम क्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डी लैच। अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए ऑल वी नीड आर वी नीड बेसिकली टू डी लैचेस, ठीक है। एक ये और एक ये, एक को हम मास्टर कह देंगे और एक को स्लेव। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मास्टर है कौन सा स्लेव, कि दोनों में जो कंट्रोल आ रही है जिसको हम क्लॉक का नाम दे रहे हैं, एक में डायरेक्ट आ रही है और एक में वाया इन्वर्टर जा रही है, ठीक है। एक में डायरेक्ट जा रही है और एक में वाया इन्वर्टर जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि ये वाला लैच कब एक्टिव होता है, जब क्लॉक की वैल्यू क्या होती है 1, और ये वाला लैच भी कब एक्टिव होता है, जब क्लॉक की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है ओरिजिनल क्लॉक को जब मैं 1 दूंगी तो ये वाला एक्टिव होगा, ये वाला इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि 1 होने की वजह से ये क्या हो गया, 0। तो ये 0 पे इसने अपनी पुरानी वैल्यू को रिटेन रखना है। जबकि 1 अगर मैं दे दूं तो इसका मतलब है कि जो डी में होगा वो क्यू में आ जाएगा, ठीक है। So this is what the master slave configuration does, that at one time only one flip flop is one latch is active while the other will retain its previous value, ठीक है। अब क्लॉक मैंने एक कॉन्टिन्यूस पल्स ऑफ दे दी है क्लॉक, ठीक है। ये मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस पल्स है क्लॉक की। अब मैंने यहाँ पे डी इनपुट दी, रैंडम कोई भी मैं इनपुट दे देती हूँ। मैंने पहले 0 दी, फिर मैंने एक टाइम के बाद 1 दी, फिर मैंने 0 दी, फिर एक टाइम के बाद 1 दी, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है कि ये वाला लैच में क्यू में डी कब आता है, जब ये 1 होता है। अदरवाइज ये 1 नहीं होता तो क्यू में उसकी पुरानी वैल्यू ही रिटेन रहती है। तो अब इसका मतलब ये है कि अभी क्लॉक 0 है, तो इसका मतलब है ये 0 है। जब ये 0 है तो इसने तो पुरानी वैल्यू को रिटेन रखना है, लेकिन ये 1 हो गया, ये 1 हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जब 1 हो गया तो जो इसके डी में होगा वही इसकी आउटपुट में होगा। हम इसकी आउटपुट को क्यू एस कह देते हैं और इसकी आउटपुट को क्यू एम कह देते हैं। यानी क्यू एस आपका क्यू है और क्यू एम बेसिकली डी है किसका, स्लेव का, स्लेव की इनपुट है। अब होगा क्या कि जब हमने क्लॉक को 0 दिया तो इसने तो अपनी पुरानी वैल्यू को रिटेन रखना है, यानी जो पहले से क्यू एम में वो ही रहेगा, वो डी पे डिपेंड नहीं करेगा। और स्लेव की आउटपुट में क्या आ रहा है, स्लेव की आउटपुट चूंकि ये वाला लैच एक्टिव है तो जो क्यू एम है वो यहाँ आ जाएगा। तो क्यू एम क्या है, क्यू एम 0 है, तो ये यहाँ आ जाएगा। किस टाइम तक, जब तक क्लॉक 1 नहीं हो जाती, क्योंकि जब क्लॉक 1 होगी तो ये वाला लैच जो है वो हाई हो जाएगा और ये वाला जो है वो लो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसने अपनी पुरानी वैल्यू को रिटेन रखना है, जो कि इस केस में क्या है, 0। और जब ये 1 हो गया है तो इसने डी को स्टोर करना है। तो जब ये 1 हो गया, इस टाइम तक जो डी में है वो एज इट इज कॉपी कर लें क्यू एम में, क्योंकि जब तक ये 1 है तो जो डी होगा वो क्यू एम होगा, ठीक है। और उस टाइम पे जब तक ये 1 है उस टाइम तक क्यू में क्या होगा, जो पहले से स्टोर्ड है, क्योंकि
इसकी क्लॉक 0 हो चुकी है, तो इसने अपनी पुरानी वैल्यू को रिटेन रखना, और इसकी पुरानी वैल्यू ये है जो इसने शुरू में दी थी। तो होगा क्या कि अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं जिसमें ये क्लॉक 1 है, तो क्यू एम में डी है। तो आप और से देखें डी क्या है इस पूरे इंटरवल में, पहले डी 0 है, तो पहले डी 0 है, फिर डी 1 हुआ, ये 1 हो गया। कब तक 1 रहेगा? इस इंटरवल तक, जब तक ये वाली क्लॉक 1 है। जब ये क्लॉक 1 है, ठीक है, तो जो डी में है वो क्यू में आ गया। अब जैसे ही ये क्लॉक 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसने अपनी पुरानी वैल्यू को रिटर्न रखना है। अब डी में जो चेंज हो रहा है वो उसने उसको नोटिस नहीं करना। तो अब जब जैसे ही ये 0 हुआ, तो इसने ये वाली वैल्यू को थ्रू आउट रिटेन रखना है। थ्रू आउट रिटेन रखना है कब तक? जब तक इसकी अगली एज नहीं आ जाती। ठीक है, ठीक है। तो अब उसकी अगली एज तक यहाँ आएगी, तो इसका मतलब है कि उस तक इसने अपनी पुरानी वैल्यू को रिटेन रखना है क्यू एम। मीनवाइल ये क्लॉक जब 1 से 0 हुई, जिसमें इसने अपनी पुरानी वैल्यू को रिटेन रखना है, लेकिन उस टाइम पे ये हाई हो गया है। तो ये हाई होने का मतलब ये है क्योंकि ये 0 हो गया है, ये 0 हो गया है, तो ये 1 हो गया। अब जब 1 हो गया, तो जो क्यू एम में है, जो क्यू एम में है वो क्यू एस में आएगा। तो एक तरह से इस डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट क्या है? क्यू एम। तो आपने क्यू एम को मॉनिटर करते रहना है। कब तक? इस पूरे इंटरवल में आपने क्यू एम को मॉनिटर करना है। जो क्यू एम में होगा उसको आप क्यू में पास कर दें। इस पूरे इंटरवल में क्यू एम में क्या आ रहा है? पहले 1 आ रहा है। इस पूरे इंटरवल में क्यू एम में पहले क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ये, ठीक है। अब और फिर बीच में क्या हुआ है? ये 1 आ रहा है, लेकिन अब चूंकि ये 1 हो गया है, तो इसने इस चेंज को डिटेक्ट नहीं किया और इसने अपनी पुरानी वैल्यू रिटेन रखी। कब तक? जब तक इसका अगला 1 नहीं आ जाता। और इसका अगला 1 कब आएगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ पे इसका अगला 1 आएगा। तो अब आप चेक करेंगे कि इस टाइम पे क्यू एम क्या है। तो इस टाइम पे क्यू एम क्या है? 0। तो ये 0 हो जाएगा। कब तक 0 होगा? जब तक इसकी ये अगला 0 नहीं आ जाता क्लॉक का। अगले 0 में आपने वापस चेक करना है कि क्यू एम क्या है। तो ये आपके पास है। तो इसका तरीका ये है कि पहले, सबसे पहले आप क्यू एम सारा ड्रॉ कर लें। क्लॉक को देख के और डी को देख के पहले पूरा क्यू एम एंड तक ड्रॉ कर लें। फिर आपने इसको ड्रॉ करना है, किसको देख के? क्लॉक की नेगेटिव लेवल को देख के और क्यू एम को देख के पहले आप फिर इसको ड्रॉ कर लें। तो अब हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? ये एक मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है जिसकी इनपुट मैंने डी और क्लॉक की और उसकी आउटपुट क्यू है। तो आप गौर से देखें कि क्लॉक की किस किस टाइम पे क्यू में ट्रांजिशन आ रही है। अगर आप गौर से देखें तो क्यू में ट्रांजिशन एक यहाँ आ रही है, फिर एक यहाँ आ रही है और एक यहाँ आ रही है। इन टाइम में देखें क्लॉक की कौन सा टाइम आ रहा है। ये देखिए, ये वाली एज आ रही है क्लॉक की। अगले ट्रांजिशन में देखें क्लॉक की कौन सी एज आ रही है? ये। और उससे अगले ट्रांजिशन में देखें क्लॉक की एज कौन सी आ रही है? ये। यानी इस एज और इस एज पे ट्रांजिशन हो रही है, बाकी कहीं पे भी ट्रांजिशन नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि कौन सा टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है? दिस इज अ नेगेटिवली एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। व्हाई इज इट अ नेगेटिवली एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप? क्योंकि क्लॉक की नेगेटिव एज पे ट्रांजिशन आ रही है। नेगेटिव एज मैंने आपको क्या बताया था? फॉलिंग एज, 1 से 0। जब क्लॉक 1 से 0 जाएगा ओनली देन यहाँ पे ट्रांजिशन आएगी, अदरवाइज इसमें ट्रांजिशन नहीं आएगी। तो इन टाइम इंटरवल्स में इसमें ट्रांजिशन आएगी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पे ये क्या है? अब इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर है क्या? आप ये मैंने आपको जिस तरह ये बताया है ना, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, इसके अंदर है क्या? इसके अंदर एक डी लैच है और एक और एक डी लैच है। डी लैच विद, मैंने आपको जिस तरह बताया कि वो हमने वो वाला स्ट्रक्चर यूज करा जिससे हमने 4 नैंड गेट्स यूज किए थे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो एक के अंदर ये है और इसके अंदर भी ये है। ठीक है, अब ये इनेबल बेसिकली कहाँ से आ रही है? क्लॉक से आ रही है। तो इसकी इनेबल तो डायरेक्ट जा रही है, इसकी इनेबल वाया इन्वर्टर जा रही है। तो जिस टाइम पॉजिटिव लेवल पे ये काम करेगा, नेगेटिव लेवल ऑफ द क्लॉक पे ये काम करेगा, जबकि ये कब काम करेगा? पॉजिटिव लेवल ऑफ द क्लॉक। सो इस तरह से आपका ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। तो ये डिफरेंस है फ्लिप फ्लॉप का, कि हम लोग फ्लिप फ्लॉप में इनपुट में जो क्लॉक होती है ना, उसको हम इस तरह ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते साथ ही मुझे पता चल गया कि ये फ्लिप फ्लॉप है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर क्लॉक के आगे कोई बबल नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। और क्लॉक के आगे अगर बबल लगा हुआ है तो दिस इज अ नेगेटिवली एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। यानी इस फ्लिप फ्लॉप में ट्रांजिशन कब आएगा? जब क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी। इस फ्लिप फ्लॉप में ट्रांजिशन कब आएगा? जब क्लॉक की नेगेटिव एज आएगी।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अगर वो आपसे मांगा जाए तब आपको पता होना चाहिए इसके अंदर ये है। अदरवाइज फॉर द टाइमिंग आप समझे कि आपको सिर्फ इस बॉक्स का ऑपरेशन पता होना चाहिए। इस बॉक्स का ऑपरेशन क्या है कि जब भी क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी तो जो डी में होगा वो क्यू में आएगा। अगर क्लॉक की पॉजिटिव एज नहीं आई हुई तो इसका मतलब है कि जो पहले से क्यू में मौजूद है वो ही रिटेन रहेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी आप फॉर द टाइमिंग इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को भूल के अगर आप सिर्फ इस पे ही वर्कआउट कर लें तो इट इज मोर देन इनफ। ठीक है। अब मैं आपको ये एक वीडियो मैंने बनाई हुई थी, मैं इसको लोड करती हूँ और फिर आप लोग इसको देखें कि क्या है। बेसिकली अगर आप और से देखें तो मास्टर latch works on positive level of the clock and slave latch works on the negative level of the clock. अब ये बेसिकली मैं एक मिनट आपको बता दूं कि बेसिकली ये हमारे पास पूरी क्लॉक है। अब मैं फ्लिप फ्लॉप की बात नहीं करी, मैं पूरा मास्टर स्लेव का ऑपरेशन बता रही हूँ। ठीक है। अब ये पूरा लेवल है। अब मास्टर ने कब वर्क करना है, इस टाइम पे, और स्लेव ने कब वर्क करना है, इस टाइम पे। तो मास्टर की इनपुट क्या है, डी, और स्लेव की इनपुट क्या है, क्यू एम। जो मास्टर की आउटपुट है वो स्लेव की इनपुट है। अब ये देखिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ये मेरे पास है, ये मास्टर के लैच है, इसकी आउटपुट है क्यू एम। ठीक है। इसकी आउटपुट कनेक्टेड है दूसरे लैच के साथ जिसको हम स्लेव कहते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली क्लॉक की नेगेटिव क्लॉक के इन्वर्ट होके जाएगा जो मैंने पहले बनाया है। ठीक है। इसकी आउटपुट है हमारे पास क्यू एस। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि ये हमारे पास मास्टर है और ये हमारे पास स्लेव है। अब ये हमारे पास क्लॉक है और ये हमारे पास रैंडम डी इनपुट्स हैं। ये सारे मैंने इंटरवल्स ड्रॉ कर दिए कि कब कब आपके पास लेवल्स आ रहे हैं। ये हाई लेवल है और ये लो लेवल है, ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है। ठीक है। क्यू एम इज द आउटपुट ऑफ मास्टर and input of slave. QM is the output of master and input of slave. QS is the output of slave. ठीक है। QS क्या है, output of slave. अब हम लोग क्या करेंगे, QS इज द आउटपुट। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग अब लेवल वाइज चलेंगे। सबसे पहले मास्टर को देखें, मास्टर ने कब काम करना है, पॉजिटिव लेवल ऑफ द। अब ये पॉजिटिव लेवल है। अब हर पॉजिटिव लेवल में देखें और देखें जो डी में है वो उसको दे दें। तो जब तक पॉजिटिव लेवल नहीं आया तो पहले से जो रिटेंड है वो रखें। हम एज्यूम करते हैं कि पहले से जो है वो जीरो रिटेंड है। अब जैसे पॉजिटिव लेवल आया, सिंपल डी को कॉपी करें, यहां से लेके यहां तक जो डी है उसको कॉपी करें। ये मैंने डी को कॉपी कर लिया। नेगेटिव लेवल आया तो इसका मतलब है कि पुरानी वैल्यू रिटेन रहेगी। तो इससे पहले पुरानी वैल्यू क्या है, हाई, ये हाई आ गया। फिर पॉजिटिव लेवल आया, डी को कॉपी करें, ये डी को कॉपी किया, जो डी है वो आया। अब जैसी नेगेटिव लेवल आए, इस इंटरवल से पहले पहले जो डी में था उस पूरे को कॉपी करें, कब तक, पॉजिटिव लेवल तक। फिर पॉजिटिव लेवल में जो डी है उसको एज इट इज कॉपी करें। नेगेटिव लेवल आएगा तो जो उससे पिछले इंटरवल में हमने डी का जो आउटपुट कॉपी किया था क्यू में वो आएगा। तो ये तो हो गया क्यू एम। क्यूएस के लिए आपको नेगेटिव एजेस को देखना है। ये नेगेटिव एजेस हैं क्यूएस में, ये नेगेटिव एजेस हैं। इसका मतलब ये है कि जैसी नेगेटिव एज आई तो जो क्यू एम में है, नेगेटिव लेवल आया सॉरी, तो क्यू एम को एज इट इज कॉपी कर लें। फिर जब पॉजिटिव लेवल आया तो पुरानी वैल्यू को रिटेन रखें। जब नेगेटिव लेवल आया क्यू एम को कॉपी करें, तो नेगेटिव लेवल में क्यू एम क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 है। फिर पॉजिटिव लेवल आया, ये 1 है। पॉजिटिव लेवल आया तो पुरानी वैल्यू को कॉपी करें क्योंकि उस टाइम पे उसने पुरानी वैल्यू। फिर नेगेटिव लेवल आया तो क्यू एम को कॉपी करें। फिर पॉजिटिव लेवल आया तो पुरानी वैल्यू ये जो 1 है इसी को कॉपी करें पॉजिटिव लेवल में। नेगेटिव लेवल आया तो क्यू एम को कॉपी करें, ये नीचे आ गया ये। फिर इसी नीचे वाले को कॉपी करें क्योंकि इससे पिछली वाली वैल्यू यही है। फिर पॉजिटिव लेवल आया तो जो क्यू एम है उसने आगे जाना। तो आप देखें कि ऐसे अब इसमें पूरी ट्रांजिशंस कब हो रही हैं, ये एक ट्रांजिशन ये हो रही है। तो ये क्लॉक का कौन सा एज है, नेगेटिव एज। अब लेवल पे नहीं हो रहा, फाइनल आउटपुट आपको लेवल पे नहीं मिल रही, एज पे मिल रही है। ये देखें ये एज है। अब अगली ट्रांजिशन कहाँ आ रही है, ये ऊपर जाके देखें ये कौन सी एज है, ये नेगेटिव एज। इससे अगली ट्रांजिशन कहाँ आ रही है, इधर, ये कौन सी एज है, नेगेटिव एज। ये देखें ये नेगेटिव एज, ठीक है ना। इस तरह से, और ये नेगेटिव एज, इससे अगली ट्रांजिशन है। इस तरह से ये वर्क करता है। ओके, अब हम लोग जो है ना, ये उसी चीज की जो मैंने आपको बताया, ये उसी की वो है डायग्राम। ठीक है। सो जे के फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली, अब हम लोग ने डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ लिया और हम लोगों ने जो है ना वो
ये SR फ्लिप फ्लॉप्स का हम यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ द इनवैलिड स्टेट, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं JK फ्लिप फ्लॉप्स। अब SR फ्लिप फ्लॉप्स की मॉडिफिकेशन है JK फ्लिप फ्लॉप, जिस तरह D फ्लिप फ्लॉप भी एक SR फ्लिप फ्लॉप की मॉडिफिकेशन है, लेकिन फर्क क्या है कि D फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट होती है D, लेकिन SR फ्लिप फ्लॉप में दो होती है, तो बिल्कुल इसी तरह JK फ्लिप फ्लॉप में भी दो इनपुट्स होती हैं। So JK flip-flop act as RS flip-flop except that it does not have an invalid state. JK does not mean any special, but J is equivalent to set and K is equivalent to reset. जिस तरह SR flip-flop में S का जो रोल था ना, JK flip-flop में J का वो रोल है और K का वो रोल है, ठीक है। R is equal to S is equal to 1 state has been replaced with a toggle state. अब जो इसमें invalid state आती थी ना, जब RS 1 देते थे तो invalid state आती थी, यहाँ पे उस चीज को ओवरकम कर लिया है। यहाँ पे जब भी JK फ्लिप फ्लॉप में आप लोग बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है, सिर्फ जब 1 स्टेट आती है तो 1 स्टेट में वो इनवैलिड देने के बजाय आपको टॉगल कर देगा। टॉगल का मतलब क्या होता है? टॉगल मीन्स दैट इट गिव्स यू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस आउटपुट, जो पहले से स्टोर्ड है उसका कॉम्प्लीमेंट। सो टॉगल मीन्स द आउटपुट विल चेंज टू द ऑपोजिट स्टेट। अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0 आफ्टर एवरी क्लॉक ट्रांजिशन। The JK is an RF flip-flop with feedback from Q and E। अभी बताते हैं अब JK flip-flop बनता कैसे। So this is the actual structure of a JK flip-flop, ठीक है। इन चीजों को, ये वाला जो टेबल है ना, it is not called a truth table, it is called a state table of a correct or a characteristic table. This is called a characteristic table. अब JK फ्लिप फ्लॉप बेसिकली ये J इनपुट है और ये K इनपुट है, ठीक है। J और K, J डायरेक्टली AND गेट में जा रही है और K वाया इन्वर्टर जा रही है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। और JK फ्लिप फ्लॉप किससे बनता है? D फ्लिप फ्लॉप से बनता है। अब होता क्या है, J डायरेक्टली जा रहा है और K वाया इन्वर्टर जा रहा है, और हमें जो D फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो आउटपुट है ना, दोनों Q एंड Q डैश, वो हम फीडबैक करेंगे इधर। तो जो Q है उसको हम K में फीडबैक करेंगे, यानी जो ट्रू आउटपुट है उसको हम K में फीडबैक करेंगे, और जो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है उसको हम J में फीडबैक करेंगे। फिर उसके बाद इनको जब हम लोग और गेट से पास करके D को देंगे तो ये हमारा JK फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ JK फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली D फ्लिप फ्लॉप को यूज करके हम लोग JK फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। अब ये वर्क कैसे करेगा कि जब JK 0 है, ठीक है, जब JK 0 है तो ये तो हो गया 0, ये तो हो गया 0, ये हो गया, इसकी आउटपुट होगी 1। अब इसकी आउटपुट किस पे डिपेंड कर रही है? इसकी आउटपुट डिपेंड कर रही है Q पे, तो यहाँ पर आ गया Q, तो 1 इंटू Q, 1 इंटू Q इज Q, और यहाँ 0 है, तो 0 और Q का जब आप और लेंगे तो वो D में चला जाएगा Q। तो जैसे ही क्लॉक की एज आएगी तो D की इनपुट Q में आ जाएगी, तो D की इनपुट में ऑलरेडी क्या है? Q, तो जो पहले से Q था वही Q आ जाएगा। इसका मतलब जब मैं 0 दूंगी तो नो चेंज Q। अब J 0 है और K 1 है, तो आपको पता है J 0 होने की वजह से ये तो 0 हो गया, K 1 होने की वजह से इन्वर्टर से पास करेगा, इस एंड गेट की इनपुट भी 0 होगी, 0 और 0 को और करेंगे तो 0, जैसे ही क्लॉक की एज जाए 0 आगे चला जाएगा, जो D में है वो Q में आ जाएगा, तो D में क्या है? 0। इसका मतलब ये है कि जो मैं 0 1 दूंगी तो रीसेट हो जाएगा, JK फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा? रीसेट। इसी तरह जब मैं 1 0 दूंगी, J 1 है और ये 0 है, K 0 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ आ जाएगा Q डैश और यहाँ आ जाएगा Q, क्योंकि जब J 1 है तो यहाँ पे 1 इंटू Q डैश, तो 1 इंटू Q डैश इज Q डैश, और जब K 0 है तो ये 1 हो गया, तो 1 इंटू Q इज Q। तो एक Q है और एक Q डैश है, तो Q A प्लस A डैश इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? आपको पता है, और गेट करें, A प्लस A डैश इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सिमिलरली Q प्लस Q डैश इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये 1 आएगा तो Q में भी 1 आ जाएगा। अब 1 1 में जब मैं यहाँ 1 दूंगी और यहाँ 1 दूंगी, तो 1 देने की वजह से यहाँ तो आ गया Q डैश, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 0। Q डैश और 0 को जब और करेंगे तो Q डैश आ जाएगा, तो जैसे ही क्लॉक की आ जाएगी तो Q में क्या आ जाएगा? Q डैश, Q में आ जाएगा Q डैश। इसका मतलब ये है कि जो पहले से Q में था अब उसकी जगह Q डैश आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो हमेशा से ये ओवरकम कर रहा है 1 1 की प्रॉब्लम को, कि जिसमें हमारे पास इनवैलिड स्टेट आ रही थी। तो JK फ्लिप फ्लॉप में 1 1 का मतलब ये है कि इनवैलिड, यानी कि टॉगल, सॉरी नॉट इनवैलिड, टॉगल। टॉगल का मतलब ये है कि जो पहले से Q में स्टोर्ड है वो उसका कॉम्प्लीमेंट ले ले।
तो अब ये पूरी की पूरी चीज को यू आर गोइंग टू रिप्लेस इट विद अ बॉक्स JK. अनलेस आपसे पूछा जाए कि JK फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या है, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस. अदरवाइज यू जस्ट नीड टू बी ओके विद दिस कि हाँ ये इस तरह से वर्क करता है कि जब मैं यहाँ 0 0 दूंगी तो क्या आएगा, 0 1 दूंगी तो 0 आएगा. सो ऑल यू नीड टू मेमोराइज इज दिस टेबल एंड दिस थिंग. कि आप देखते साथ ही कहें JK, अच्छा ये क्लॉक की किस एज पे काम करेगा, ये क्लॉक की पॉजिटिव एज पे काम करेगा. इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ 1 दूंगी और यहाँ 0 दूंगी, जैसे ही क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी तो यहाँ 1 आ जाएगा. अदरवाइज वो अपनी पुरानी वैल्यू को रिटेन रखेगा जब तक एज नहीं आएगी. ठीक है. So in this way I'm able to do the JK flip flop. So this is all for today. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, इंटरैक्टिव क्लास में, आप लोग मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा इसको. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन, अल्लाह हाफिज.